Hello, dear students. This is Neera Garg, English mistress, working at Government Girls Senior Secondary School, Dhanola, District, Barnala. I am again here to discuss translation for class 8th. ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਸ ਬੇਸਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਯੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਟੈਂਪਲ ਡੇਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੈਕਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਅਰਥ ਰਿਵੋਲਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਸਬਜੈਕਟ। ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਔਰ ਅਪਲਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਵਰਬ। ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੂਅਰ, ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਡੂਅਰ ਜੋ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, in that case will not apply s or es with the first form of the verb। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 21st ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਵਰਬ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਦ ਸੇਮ, ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੈਂ, ਆਈ। ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗੋ, ਆਈ ਗੋ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਟੂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੂ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੇਲੀ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਡੇਲੀ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ 22nd ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੀਨਸ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਡ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਕੁੱਕ। ਕੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈ ਮਦਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ 1 ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਮਦਰ ਕੁੱਕਸ। ਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਟੇਸਟੀ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਭੋਜਨ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੂਡ। ਸੋ ਯਰ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਮਦਰ ਕੁੱਕਸ ਡੈਲੀਸ਼ੀਅਸ
fool. Now we have another sentence, सबने पाठ याद कर लिया है। बेटे एक चीज़ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦ ਰੂਲ ਵਿਲ ਬੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ सबने मीन्स एवरीवन। ठीक। और क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम खत्म हो चुका है, ये एवरीवन जो है सिंगुलर है, आप हैज़ अप्लाई करांगे। एवरीवन हैज़ याद करन दी इंग्लिश होंदी है लर्न, बट इत्थे क्योंकि थर्ड फॉर्म लगनी है तो आंसर बनेगा लर्नड। एवरीवन हैज़ लर्नड की बच गया लेसन, द लेसन। राइट। देन 24th सेंटेंसेस, मैं अपना जन्मदिन मनाया। बेटे जदों पास्ट की गल होवे, जिहड़ा बहुत पहला हो चुकिया, ठीक है, उहदे लई आपां सिंपल पास्ट टेंस की वरतों करनी है। और अकॉर्डिंग टू रूल वर्ब दी सेकेंड फॉर्म विल बी अप्लाइड फॉर दैट। राइट। सो मैं अपना जन्मदिन मनाया, मैं मीनस आई, और मनाउण दी इंग्लिश हुंदी है सैलीब्रेट। बट क्योंकि मनाया पहला हो चुकिया, बहुत पहला हो गया, इस करके पास्ट टेंस दे विच सेकेंड फॉर्म लगेगी सैलीब्रेटेड। आई सैलीब्रेटेड की रह गया अप माई, और जन्मदिन, जन्मदिन की इंग्लिश होंगी है बर्थडे, आई सैलीब्रेटेड माई बर्थडे। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, मेरे पिताजी बाजार जाणगे। बेटे जदों भी गा गे गी होवे मीनस कि ए सिंपल फ्यूचर टेंस है, जिस दे विच वर्ब विल और शैल दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। तो इत्थे मेरे पिता जी की इंग्लिश की होएगी माई फादर। जान दी इंग्लिश आप उस तो पहला क्योंकि आपने गे वाली गल करनी है, जान गे तो विल आएगा, और जान दी इंग्लिश की होंगी है गो। माई फादर विल गो, कित्थे जाणगे, टू द मार्केट। राइट। देन नंबर 26 इज, परमात्मा मेरी मदद करनगे। अगेन करनगे गागे गी वाली गल है तो विल लगना ही लगना है, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस की गल है। ठीक है। परमात्मा की इंग्लिश की होगी गॉड, ये सारे पता है। गॉड विल, मदद करन दी इंग्लिश होंगी है हैल्प, और किस दी मदद करनी है, मेरी, मी, क्योंकि ये लास्ट दे विच ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो पीछे जाके मी बन गया। सो गॉड विल हैल्प मी। देन 27 सेंटेंसेस, ओह तेज दौड़ रहा है। बेटे जिथे भी रहा है, रहे हैं, ये सिंपल कंटिन्यूस टेंस है, जिस दे विच रूल के मुताबिक इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा। ओहो दी इंग्लिश होगी ही, है इस करके रहा है इज, और दौड़न दी इंग्लिश होंगी है रन। राइट। बट रनिंग आप लगा रहे हैं क्योंकि रहा है, जदों भी रहा है, रहे हैं वाली गल होवे ING लगना ही लगना है। ठीक है, वर्ब दे नाल। सो आंसर हो गया ही इज़ रनिंग, और तेज की इंग्लिश की होंगी है फास्ट, तो ही इज़ रनिंग फास्ट। राइट। देन 28 सेंटेंसेस, चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा है। अगेन रहा है, रहा है, ये वाली गल होवे तो ING लगना ही लगना है। ठीक है। और चपड़ासी की इंग्लिश की होएगी द पियोन। द पियोन इज़, क्योंकि ये नावाचक सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो ये नाल नॉट लगाना जरूरी है। द पियोन इज़ नॉट, वजाउन की इंग्लिश होंगी है रिंग। ठीक है। पर रहा है इस करके ING नाल लगेगा रिंगिंग। द पियोन इज़ नॉट रिंगिंग, की बच गया घंटी, द बेल। ठीक है जी। देन 29 सेंटेंसेस, विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। बेटे ये फ्यूचर की गल है भी शायद इस तरह कर रहे होंगे। जदों रहे होंगे वाली गल होवे, एक तो गा गे वाली गल है, गा गेगी वाली, तो विल तो लगना ही लगना है, और रहे होंगे तो ING भी लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना। ये थोड़ा बन जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आंसर अपना फिर की बनया, विद्यार्थी तो शुरू करांगे, विद्यार्थी होंगे ज़्यादा ने, द स्टूडेंट्स विल बी, पढ़ाई करन दी इंग्लिश होंगी है स्टडी। जदों रहे होने वाली गल होगी ING नाल लग गया तो बन गया स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग।
Now, dear students, then we have 30th sentence. किसान आराम नहीं कर रहे होंगे। बेटे किसान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਫਾਰਮਰਸ, ਔਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਲ ਨॉट ਬੀ। ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਟੇਕਿੰਗ ਰੈਸਟ, मतलब ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਕ ਰੈਸਟ। ठीक है, क्योंकि इतने रहे वाली गल है तो टेकिंग बन गया। द फार्मर्स विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। देन वी हैव 31st सेंटेंस, सुशील ने अपना काम कर लिया है। कर लिया है मीनस काम हो चुका है, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ, क्योंकि सुशील वन पर्सन है, सिंगुलर है ना, हैज़ आ गया। और कम करन दी इंग्लिश मतलब कम करना होता है डू, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी है तो डन बन गया। सुशील हैज़ डन अपना कम, उसका आप दा कम, हिज वर्क, राइट। सुशील हैज़ डन हिज वर्क। देन वी हैव 32nd सेंटेंस, मेरे अध्यापक ने कापी चेक कर ली है। ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਹੈਜ਼, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਹੈਜ਼ ਚੈੱਕਡ, ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਦ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਹੈ, ठीक है। तो ये भी की है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। मुंडियाँ ज़्यादा ने, बॉयज़, द बॉयज़, बॉयज़ ज़्यादा ने इस करके हैव आ गया, और नहीं वाली गल है तो नॉट आ गया। द बॉयज़ हैव नॉट, तोड़न दी इंग्लिश होंगी है ब्रेक, बट थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली ब्रोकन आएगा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन पढ़ते हो ना आप। द बॉयज़ हैव नॉट ब्रोकन, की तोड़िया, चेयर, द चेयर, द बॉयज़ हैव नॉट ब्रोकन द चेयर। देन वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, मैनू एक नौकरी मिल गई है। मैनू, मैनू दी इंग्लिश होगी आए, मिल गई है मतलब मेरा ये हो चुका है, ठीक है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। सो आई हैव, आई नू चाहे आए हुंदा सिंगुलर है बट ये नाल हमेशा हैव लगेगा। आई हैव मिलन दी इंग्लिश होंदी है गेट, पर इतने थर्ड फॉर्म है इस करके गॉट। आई हैव गॉट की मिली, नौकरी, अ जॉब। डियर स्टूडेंट्स, देन वी हैव 35th सेंटेंस, किसी ने मैनू बुलाया है। किसी ने बुलाया है मतलब काम हो चुका ना, इस करके अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वरतों करनी है। जो काम हो चुका होवे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगता होंगे, ठीक है। किसी ने मतलब पता नहीं कौन है, समवन, समवन हैज़, बुलान दी इंग्लिश होंगी है कॉल, बट थर्ड फॉर्म लगेगी इस करके हो गया कॉल्ड। समवन हैज़ कॉल्ड, किसनू बुलाया, मैनू, मी, पीछे जाके प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पीछे मी लगेगा, समवन हैज़ कॉल्ड मी। देन वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन ने एक गीत गाया है। गाया है अगेन काम तो हो चुका ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव दे नाल थर्ड फॉर्म, तो हुण तक समझ आ गया होएगा भी जिहड़ा काम हो चुका ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ टेंस लगना है, राइट। मोहन, मोहन तो ये आंसर शुरू हो जाएगा, मोहन, मोहन सिंगुलर है, हैज़ आ गया। गॉन दी इंग्लिश होंगी है सिंग, बट थर्ड फॉर्म लगेगा संग, सिंग, सैंग, संग। सो मोहन हैज़ संग, और की गाया, गीत, एक गीत, अ सॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, then we have 37th sentence, कुड़ियाँ जमात विच चलियाँ गईयाँ हन। कुड़ियाँ दी बेटा इंग्लिश होएगी गर्ल्स, द गर्ल्स, ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इस करके हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। द गर्ल्स हैव, जान दी इंग्लिश होंगी है गो, थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, कित्थे गईयाँ ने, क्लास विच। टू द, जिथे भी जा रही ने उत्थे तुसी टू लगा के नाल जो भी जिते भी गए ने लिख देना चीज़ का नाम। सो द गर्ल्स हैव गॉन टू द क्लास, राइट। देन वी हैव 38th सेंटेंस,
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस राइट, पर ये नेगेटिव है इस करके नॉट लगाना ज़रूरी है और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब दे नाल ही लगेगा। सो अपना आंसर जोड़ा है वो किवें शुरू होएगा, द पुलिस हैज़ नॉट। फड़न की इंग्लिश होंदी है कैच, आप कहते हैं ना कैच करो फड़ो, पर क्योंकि थर्ड फॉर्म है कैच की थर्ड फॉर्म होंदी है कॉट, CAUGHT। सो द पुलिस हैज़ नॉट कॉट द, किसनों फड़िया, thief नो, the thief, right? Then we have 39th sentence, ओहो इस साल पास नहीं होया है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओहो दी इंग्लिश होंदी है बेटा ही, और ही दे नाल सिंगुलर है इस करके हैज़, नहीं वाली गल है तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट आ गया। ही हैज़ नॉट, पास होने दी इंग्लिश पास दी पास ही रहेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ट, राइट। इस साल दी इंग्लिश की होगी दिस year, he has not passed this year। and last sentence we have, मेरे चाचा जी ने मैनू तोहफे विच एक घड़ी दित्ती। देखो ये पास्ट दी गल है, पुरानी गल है, जिहड़ी पास्ट विच हो चुकी है ਉਹਦੇ ਲਈ सिंपल पास्ट ਦੀ ਵਰਤੋਂ करनी है, सेकेंड फॉर्म विल बी applied for that, right। मेरे अंकल मीन्स माय अंकल, देन दी इंग्लिश होंदी है गिव, पर क्योंकि पास्ट की गल है सिंपल पास्ट लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगी, गिव दी सेकेंड फॉर्म होगी गिव। किसनू दिती है, मी मैनू, की दिती है, अ रेस्ट वॉच, राइट। किस तरह दिती है, तोहफे दे विच, फिर आंसर अगे की बन गया एज अ present, right। so my uncle gave me a wristwatch as a present। so beta these were your translation based on tenses। so I hope it might be clear to all of you। और तुसी इनू बैठ के आप एक बारी पढ़ के भी ज़रूर देखना है ताकि तुहानू इस चीज़ की होर ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि ट्रांसलेशन जिहड़ी टेंस बेस्ड है वो किस तरह कीतियां जांदियां ने, जिस दे लई तुहानू सब तो पहला टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए है और उन्हां दे रूल्स बारे नॉलेज होनी चाहिए है, तो तुसी ईजीली उसनू ट्रांसलेट कर सकते हो। थैंक यू।